हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओ लैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो आपका एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था। साथ ही साथ इसका जो प्रोसीजर था, यानी किस तरीके से आप इसे रियल लैब में, वास्तविक लैब और ओ लैब में परफॉर्म करेंगे, उसको हमने डिटेल में स्टेप वाइज समझा। आज हम ये देखेंगे आपके वीडियो के माध्यम से कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से हम इसे परफॉर्म भी करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से ये देखते हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। The density of a solid can be determined using the formula. Density is equal to mass by volume. Stone. Use a spring balance, a stone and a piece of twine. Tie the stone using the twine. Now, weigh the stone using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the stone is 75 grams. Iron. Use a spring balance, a piece of iron and a piece of twine. Tie the iron using the twine. Now, weigh the iron using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the iron piece is 200 grams. Wood. Use a spring balance, a block of wood and a piece of twine. Tie the wood using the twine. Now, weigh the wood using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the wood is 15 grams. Steel. Use a spring balance and a steel ball. Weigh the steel ball using the spring balance by suspending the steel ball from the hook of the spring balance. The mass of the steel ball is 120 grams. Copper. Use a spring balance and a copper lock. Weigh the copper lock using the spring balance by suspending the lock from the hook of the spring balance. The mass of copper lock is 90 grams. Now, we have to find out the volume of these objects. Stone. Use a stone, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the stone using the twine. Immerse the stone in the beaker holding the free end of the twine. The water level goes up. Use a stone and a copper lock. Weigh the copper lock using the spring balance by suspending the lock from the hook of the spring balance. The mass of copper lock is 90 grams. Now, we have to find out the volume of these objects. Stone. Use a stone, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the stone using the twine. Immerse the stone in the beaker holding the free end of the twine. The water level goes up to 78.8 ml. The volume of water displaced is 28.8 ml. Iron. Use a piece of iron, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the piece of iron using the twine. Immerse the piece of iron into the beaker, holding the free end of the twine.
The water level goes up to 73.5 ml. The volume of water displaced is 23.5 ml. Wood. Take a block of wood, a twine, and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the wood using the twine. Immerse the block of wood into the beaker. The water level goes up to 73.5 ml. The volume of water displaced is 23.5 ml. Wood. Take a block of wood, a twine, and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the wood using the twine. Immerse the block of wood into the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 71.4 ml. The volume of water displaced is 21.4 ml. Steel. Use a steel ball, a piece of twine, and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the steel ball using the twine. Immerse the steel ball in the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 65.5 ml. The volume of water displaced is 15.5 ml. Copper. Use a copper lock, a piece of twine, and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the copper lock using the twine. Immerse the copper lock in the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 70 ml. The volume of water displaced is 20 ml. अब हम जो है रियल लैब के वीडियो के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. Determination of density of solid. The density of a material is defined as its mass per unit volume. If D is the density of a body of mass m and volume is V, then D is equal to m divided by V. Here, our aim is to determine the density of a solid which is denser than water by using a spring balance and a measuring cylinder. Materials required: iron stand, spring balance, lock, cuboid, wooden block, stone, measuring cylinder, a beaker containing water, thread, and scissors. Procedure: to determine the density of an object, the mass of the object has to be measured. Hang a spring balance using an iron stand as shown. Suspend a lock on the hook of the spring balance. Observe the mass of the lock carefully and note it down. To measure the volume of the lock, a graduated cylinder of proper size and capacity is used. Fill it with water up to a particular level. Note the reading. Cut a piece of thread, tie the lock and then immerse the lock slowly in the graduated cylinder containing water by holding the free end of the twine. The lock displaces water and the water level rises. Note the current position of the water level. Find the difference between the final and initial levels of water, which will give the volume of the lock immersed. Now, we can determine the density of the lock by using the formula density is equal to m divided by v, which is equal to mass in grams divided by volume in centimeters to the power of 3. With the same procedure, we can also find the density of a stone and a wooden block. अब हम सिमुलेटर में जाएंगे.
सिमुलेटर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी डेंसिटी हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम जो है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है सेलेक्ट एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आपको दे रखे हैं ऑप्शन, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अर्थ लेंगे, ठीक है। और अर्थ का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सेलेक्ट टाइप ऑफ टेस्ट, यानी आप किस तरीके का टेस्ट यहाँ पे करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास है फाइंड मास, दूसरा है वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे मास निकालेंगे सबसे पहले, तो आप फाइंड मास में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल मास जो आपको यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। देन आपको ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ फॉर्मूला वगैरह भी आपके यहाँ पे या इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम जितना आपका आएगा वो आप डालेंगे और यहाँ पे आप डेंसिटी डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे, रीसेट करेंगे। रीसेट के नीचे आप देख सकते हैं, रीसेट के ऊपर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी जो भी आपको सॉलिड लेने हैं, जो भी आपको ठोस लेने हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बस क्लिक करना है और ये आपका स्प्रिंग बैलेंस में आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है, स्प्रिंग बैलेंस में आपका जो ठोस है, जैसे यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, एक सिलेंडर लिया है तो वो वहाँ पे आपका आ गया है। अब जो आपका स्केल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको रीडिंग भी क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि जो रीडिंग है वो कितनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास जो स्प्रिंग बैलेंस में ग्रेविटेशनल मास आया है, ठीक है, वो आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया है आपका, अगर हम ग्राम की बात करें तो 174 ग्राम, तो ये है आपका 170 ग्राम, यानी 170 ग्राम यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 170 ग्राम लिखेंगे। अब यहाँ पे है द एक्चुअल मास ऑफ बॉडी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको यहाँ एक्चुअल मास लिखना है, ठीक है। तो एक्चुअल मास आप कैसे निकालेंगे, आप इसको जो है 9.8 से डिवाइड कर देंगे, जो आपकी वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 170 आई है ग्रेविटेशनल मास, तो आप उसमें क्या करेंगे 9.8 को जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 9.8 क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और यहाँ पे जो ये आपका स्केल है ये आपका ग्रेविटेशनल मास को दर्शा रहा है, यानी बेसिकली ये mg को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 9.8 से इसे डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो आपके पास इस वस्तु का ओरिजिनल मास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल मास आया है, ठीक है, कितना आया है 170। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्चुअल मास, यानी जो उसका द्रव्यमान है वो निकालना है, जो वास्तविक द्रव्यमान है। तो आप क्या करेंगे 170 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से, ठीक है। इसे आप डिवाइड करेंगे, फिर आप इसका जो है यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आया है 17.3 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 17.3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा।
अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे वॉल्यूम में जाएंगे, फाइंड वॉल्यूम में, इसी सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सिलेंडर इसमें आपका चला गया है। तो यहाँ पे आपके पास पानी के लेवल की रीडिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम पानी का लेवल जो आपका इनिशियल में है, यानी जब आपने वस्तु को इसके अंदर डाला नहीं है, उस रीडिंग को आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, तो ये 50 आ रहा है। क्या आ रहा है, 50, ठीक है, 50 मिलीलीटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे 50 लीटर, सॉरी 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल रीडिंग क्या आई है, जब आपने वस्तु को नहीं डाला है, कितना आया है, 50 मिलीलीटर। अब हम लेंगे जब हम इस पे ऑब्जेक्ट को या वस्तु को डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम डाल देते हैं। अब आप रीडिंग देख सकते हैं कितनी आ रही है, 70, ठीक है, 70 आ गया है। तो आप इसे लिखेंगे यहाँ, L2 जो आया है वो आपका 70 मिलीलीटर है। यानी इसका जो वॉल्यूम आया है, जो आयतन आ गया है आपकी वस्तु का, वो कितना आया है, 70 माइनस 50, यानी 20 मिलीलीटर, ठीक है। 20 मिलीलीटर यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा आ गया है 20 मिलीलीटर, ठीक है। और आपके पास क्या आया है, ग्राम में मास आ गया। अब आप मिलीलीटर को, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर है। इस फॉर्मूले से आप इसे जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना आएगा, 20, ठीक है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना है, 17.3, ठीक है, 17.3 आया, और ये 20, ठीक है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया है आपका 0.865, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 170 आया था, मास जो हमने निकाला वो आया 17.3, वॉल्यूम आपका 20 आया था, और जो आपकी डेंसिटी आई है वो आई है 0.65, 0.86, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो इसी तरीके से आएगी। इसी तरीके से आप जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यूज करके आप फिर से जो है यहाँ पे इसको जो है या अलग अलग जो आपके बाकी वस्तुएं हैं उनसे आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है दूसरी वस्तु ले लेते हैं। पहले आप रीसेट में जाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर से आप कर सकते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, या आप उसी में अर्थ में कर सकते हैं, ठीक है। लॉक लिया हमने। सबसे पहले हम मास निकालेंगे। तो मास आप देख सकते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना आया है, 220। तो यहाँ पे आप 220 लिख लेंगे। अब 220 को 9.8 से डिवाइड करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल मास आया है
वो 220 ग्राम आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका जो एक्चुअल मास है वो निकालना है। तो एक्चुअल मास 220 से आप 9.8 को डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 22.4 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो उसका मास आ जाएगा 22.4 ग्राम। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो आप वॉल्यूम में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इनिशियली जो इसकी वैल्यू है वो देखेंगे। तो शुरुआत में कितनी है इसमें वैल्यू, आप देख सकते हैं 50 है। ठीक है, 50 है। अब हमने ये डाला तो कितनी हो गई, सॉरी ये डाला तो कितना हो गया, 50 था पहले। और अब क्या आया, अब आप देख सकते हैं ये 70 आ गया है। ठीक है, 70 आ गया है, 70 लीटर, 70 मिलीलीटर। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। तो 70 माइनस 50, 20 ml या 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे जो है डेंसिटी में, आप डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व जो है, डेंसिटी जिसे आप कहते हैं, तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 22.4 अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ 20। सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 1.14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, आप इसे भी नोट करेंगे। तो जैसे हमने पहले किया बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल मास कितना आया था 220, मास कितना आया इसका 22.4। ठीक है, वॉल्यूम आया इसका 20 और डेंसिटी आई 1.14। चेक में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से फिर आप रीसेट करके बाकी और ऑब्जेक्ट से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। ठीक है, तो आप बाकी वुड यानी लकड़ी, स्टोन और बॉब, इनसे आप अपने आप इसको परफॉर्म करेंगे और सारी वैल्यूज निकालेंगे और जो आपकी टेबल है उसमें आप इन सारी वैल्यूज को रख दें। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। जो भी आज हमने कैलकुलेशन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, सब आपने नोट किया होगा। आपको क्या करना है, बाकी सारे जो आपके सॉलिड्स हैं उनके माध्यम से आपको इस एक्सपेरिमेंट को खुद से परफॉर्म करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।